Now, administration of Mauryan era. Chandragupta Maurya established a large empire. It was expanded by Emperor Ashoka, Chandragupta's chief minister and sharp politician Vishnugupta, that is Chanakya or Kautilya, divided large Mauryan empire for well organized administration. During this time, there were three sections of the administration. चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश किया और उसको आगे बढ़ाया उनके बेटे अशोक ने। और चंद्रगुप्त के जो मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर थे और पॉलिटिशियन शार्प थे विष्णुगुप्त, उन्होंने बहुत हेल्प की अशोक को कि वो पूरा मौर्यन एम्पायर अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। और उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो 3 सेक्शंस में किया जाता था। नाउ वी विल सी दैट administration of Mauryan age is divided into 3 parts. First is central, then provincial and regional or local. Now we will see central or administration system. Emperor was at the center of the administration governance. He was head of administrative, military and judicial departments of the empire. His position was hereditary. Patliputra and areas around it were under direct control of the emperor. He managed administration with the help of ministers and higher officials. Chanakya has told about 18 departments, out of which main departments and their heads are as follows. यानी इसमें सेंट्रल में यानी केंद्र बीच सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है उसमें राजा इसमें सेंटर में रहते थे और वो सारा हेड का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड वही होते थे। मिलिट्री जुडिशियल सारा काम वो देखते थे और ये पोजीशन हेरिडिटरी होती थी। नाउ द पोजीशन वाज हेरिडिटरी यानी वंश से चला जाता है। यानी पापा है तो राजा है, उसका बेटा ही राज पे आएगा, उसके बाद उसका बेटा, ऐसे दैट इज़ हेरिडिटरी। और पाटलिपुत्र और उसके आजू बाजू के एरिया वो डायरेक्ट कंट्रोल में थे एम्परर के। और जो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करने के लिए वो मिनिस्टर्स रखते थे और ऑफिशियल्स रखते थे। और चाणक्य ने बोला है सिखाया था, मीन्स बताया कि 18 डिपार्टमेंट होते थे। उसमें से जो मेन डिपार्टमेंट है वो ऐसे हैं। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट दैट इज़ सिताध्यक्ष, मिलिट्री डिपार्टमेंट सेनानी, जुडिशियल डिपार्टमेंट प्रदेशात्री, ट्रेड डिपार्टमेंट यानी जो बिजनेस वगैरह करते, जुडिशियल यानी लॉ, मिलिट्री यानी एवरीबडी नोज, एग्रीकल्चर यानी खेती से रिलेटेड, ट्रेड डिपार्टमेंट दैट इज़ पान्याध्यक्षक, ऑफिस रिपोजिटरी दैट इज़ अक्षपटल, रिकॉर्ड डिपार्टमेंट यानी जो ऑफिस का वर्क करते दैट इज़ महाक्षपतल, एंड रेवेन्यू यानी जो पैसे का सारा लेन देन हिसाब करते वो मुद्राध्यक्ष, मुद्रा यानी पैसे। ओके, so these are the main 6 and later divided into further. Now second is provincial. As you can see, we have seen about central, इसमें emperor is the first head and then उसके अंडर सब वर्क होता है। Now provincial administrative system. The huge Mauryan empire was divided into 5 sections. Here you can see 18 departments, out of this 6 are the main departments. Here you can see there are 5. Okay, so head of the province was the governor and usually the prince was appointed at this post. Here the king is important और यहाँ उनका बेटा प्रिंस important होता है। Governor's task in the province was to maintain peace and security and collect revenue. उनका काम है गवर्नर का कि राज्य में शांति और सलामती रहे और रेवेन्यू कलेक्ट करना। फिर to get the orders of the king obeyed and king keeping the emperor constantly aware of the events taking place in the प्रोविंस। और उनका क्या काम था कि राजा को जो पूरी चीज़ें होती है राजा का कहना जो वो है वो फॉलो करवाना और किंग को सारी बातें बताना कि ऐसा राज्य में चल रहा है, ऐसा चल रहा है, गिविंग हिम ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड। थर्ड इज रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन. फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन administrative ease, any province was divided into district, local and
Suresh, that is Taluka. District officer, that is Rajuk, worked at the district level. Which officer of province was called provincial, that is GOP. And the smallest unit of administration was the village. Its head was called Gramani. Gramani used to run the administration of the village with the help of the elected members of the village. यानी जो रीजनल लेवल यानी जो सबसे छोटे एरिया से काम करते थे वो उनके लिए उनको डिवाइड किया गया था डिस्ट्रिक्ट और तालुका में। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यानी जो राजू वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते थे और जो गांव का एरिया होता है उसमें ग्रामीणी काम करते थे, यानी आज के जैसे सरपंच बोले जाते हैं वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन विलेज का देखते थे। नाउ सक्सेसर्स ऑफ एम्परर अशोक एंड फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर। Regarding Emperor Ashok's successors, we find different information in Brahmin, Jain, and Buddhist text. According to the information given in Purans, total 9 to 10 kings of Mauryan dynasty ruled for 137 years. Taking advantage of the improvised rule of last king of Mauryan dynasty, that is Brihadrath, his General Pushyamitra killed him on the pretext of watching military drill. Thus, in 185 BC, Pushyamitra Shang established Shang dynasty on the throne of Magad and Mauryan dynasty came to an end. यानी ऐसे अलग अलग बातें बताई जाती है कि अशोक के बाद किसने राज किया। कोई ब्राह्मण, जैन, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन पुरानी इन्फॉर्मेशन से जाना जाता है कि 9 to 10 राजा मौर्यन डायनेस्टी के 137 ईयर्स तक रूल किया और इसका फ़ायदा उठा के जो लास्ट मौर्यन डायनेस्टी थी वो बृहद्रथ के हाथ में थी और उसका जो जनरल था पुष्यमित्र उसने उसको वो मिलिट्री का ड्रिल देख रहा था तो उसको कुछ गलत इंटेंशन से उसने उसको मरवा डाला और उसके बाद उसने दूसरे राज्य की मौर्यन डायनेस्टी केम टू एन एंड एंड न्यू डायनेस्टी स्टार्टेड, दैट इज 185 BC पुष्यमित्र शंग established Shang dynasty. So Mauryan dynasty came to an end and फिर उसकी जगह पे शंग डायनेस्टी आ गई और उसमें मगध और मौर्यन डायनेस्टी का पूरा ख़त्म हो गया. सो दैट वाज द रूल ऑफ Ashoka. So I hope children you have understood the lesson thoroughly. Now writing part in the textbook and workbook we will be doing later on.